चलो फर्स्ट 105 ये वाला समझना पीछे। चलो आंसर 105 dy by dx is equals to x square minus 5 into 2x minus bracket x square plus 3 into 2x upon x square minus 5 the whole square। 106 bracket root x minus 5 into 1 upon 2 root x minus bracket root x plus 5 into 1 upon 2 root x upon root x minus 5 the whole square। 107 bracket x plus e raised to x into bracket x into e raised to x plus e raised to x into 1 minus bracket x into e raised to x into ब्रैकेट ए हो गया ना, नहीं दिया होगा। ये 107 ब्रैकेट x प्लस log x into 1 upon x प्लस log x into 1 माइनस ब्रैकेट x log x into ब्रैकेट 1 प्लस 1 upon x प्लस log x द होल स्क्वायर। 108 ब्रैकेट x प्लस cos x into x स्क्वायर into cos x प्लस sin x into 2x माइनस ब्रैकेट x स्क्वायर sin x into ब्रैकेट 1 minus sin x divided by x plus cos x the whole square। yes 109 bracket 3 e raised to x minus 2 into derivation मतलब आंसर 5 e raised to x minus bracket 5 e raised to x minus 4 into 3 e raised to x upon 3 e raised to x minus 2 the whole square। खत्म। तो 109 तक कंप्लीट। 110 से यही है, ज्यादा है ना सम सभी। 124 तक ये x अपॉन x प्लस 1। चलो 110 10 ना 110 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू 2x माइनस ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर द होल स्क्वायर। 111 ब्रैकेट 2x क्यूब माइनस 4 इंटू 6x माइनस ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 6x स्क्वायर डिवाइड बाय 2x क्यूब माइनस 4 द होल स्क्वायर। अच्छा 2x क्यूब है क्या, 6x स्क्वायर आएगा, 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x क्यूब माइनस 4 द होल स्क्वायर। चलो ब्रैकेट x क्यूब माइनस 5 इंटू 1 अपॉन x माइनस लॉग x इंटू ब्रैकेट 3x स्क्वायर डिवाइड बाय x क्यूब माइनस 5 द होल स्क्वायर। 113 ब्रैकेट 3 e raised to x plus 2 into 3 e raised to x माइनस ब्रैकेट 3 e raised to x minus 2 into 3 e raised to x डिवाइड बाय 3 e raised to x plus 2 the whole square। 15 दिया क्या, ये 14 है क्या, नहीं ये हो गया, क्वेश्चन हो गया ना ये। उसके बाद x अपॉन वाला है 115 14 ब्रैकेट x प्लस 1 इंटू 1 माइनस x इंटू 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 द होल स्क्वायर। 115 x इंटू 2x माइनस ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। 116 e raised to x plus 1 into 0 minus 1 into e raised to x divided by e raised to x plus 1 the whole square। वो पूरा जीरो हो जाएगा, वो टर्म आएगा ना, माइनस 1 अपॉन e raised to x plus 1 the whole square होगा। नहीं पूरा आंसर जीरो नहीं होगा, इतना आएगा आंसर, इंटू e raised to x भी रहेगा। so 1 into e raised to x divided by e raised to x plus 1 the whole square, वो पहला टर्म जीरो होगा सिर्फ। देन 117 ब्रैकेट e raised to x plus 1 into e raised to x minus e raised to x into e raised to x divided by e raised to x plus 1 the whole square। 118 log x into 1 minus x into 1 upon log x the whole square। 119 log x into 2 raised to x into log 2 minus 2 raised to x into 1 upon x divided by log x the whole square। 120 ब्रैकेट 2 e raised to x plus 1 into 2 e raised to x minus bracket 2 e raised to x minus 1 into 2 e raised to x divided by 2 e raised to x plus 1 the whole square, राइट। 121 इसका दो आंसर्स रहेंगे, जो ब्रैकेट मल्टीप्लाई किए मतलब जो लोग ऐसा लिखे वो लोग का आंसर रहेगा ब्रैकेट e raised to x plus 1 into 2x minus x square minus 1 ब्रैकेट x square minus 1 into e raised to x divided by e raised to x plus 1 the whole square। जिनका मतलब जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनका आंसर ऐसा रहेगा ब्रैकेट e raised to x plus 1 into x plus 1 into 1 plus x minus 1 into 1 minus bracket x plus 1 into x minus 1 into e raised to x upon e raised to x plus 1 the whole square, right। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
122 bracket 2 plus x into 1 minus 1 plus x into 1 divided by 2 plus x the whole square. 123 x into 1 upon x minus bracket log x plus 1 into 1 divided by x square. 124 log x into e raised to x minus e raised to x into 1 upon x upon log x the whole square. 125 तो 124 तक ही होगा आई थिंक. डन, ये कंप्लीट. यहाँ तक कोई डाउट नहीं. उसके बाद 125 से 128 30 अच्छा बीच में है 129 130 यहाँ पे ही हुआ है. 131 से लेके ठीक है 12th इधर से है क्या? ये वाला ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट यही है. वही है ना. 131 आंसर 3 times of x square plus 4x plus 1 the whole square into 2x plus 4 plus 4 times of x cube minus 5x minus 2 the whole raised to cube into 3x square minus 5. 132 1 plus 4x raised to 5 into 8 times of 3 plus x minus x square whole raised to 7 into 1 minus 2x plus 3 plus x minus x square the whole raised to 8 into 5 times of 1 plus 4x the whole raised to 4 into 4. 133 root of 7 minus 3x into 1 minus x into 1 upon 2 root of 7 minus 3x into minus 3 divided by root of 7 minus 3x the whole square. 134 x cube plus 3 the whole cube into 5 times of x cube minus 5 the whole raised to 4 into 3x square minus x cube minus 5 the whole raised to 5 into 3 times of x cube plus 3 the whole square into 3x square divided by x cube plus 3 the whole cube the whole square. Right. 135 1 plus sin square the whole square into 3 times of 1 plus cos square x the whole square into 2 times of cos x into minus sin x plus 1 plus cos square the whole cube into 2 times of 1 plus sin square the whole raised to 1 into 2 times of sin x into cos x. Right. 136 1 upon 2 root of cos x into minus sin x plus 1 upon 2 root of cos x root x into minus sin root x into 1 upon 2 root x. 137 1 upon sec 3x plus tan 3x into bracket sec 3x into tan 3x into 3 plus sec square 3x into 3. नहीं 1 upon sec 3x plus tan 3x into bracket sec 3x into tan 3x into 3 plus sec square 3x into 3. Yes. tan 3x का डेरिवेशन sec square 3x और 3x का डेरिवेशन 3 क्योंकि log का 1 upon 1 ना फिर sec का डेरिवेशन अलग tan का डेरिवेशन अलग. Then 138 यही है ना minus cosec square of log x upon 2 into 1 upon 2 into 1 upon x minus 1 upon cot x upon 2 into minus cosec square x upon 2. नहीं आया. Question number 139 bracket e raised to 2x plus e raised to minus 2 bracket e raised to 2x plus e raised to minus 2x into e raised to 2x into 2 minus e raised to minus 2x into minus 2 minus bracket e raised to 2x minus e raised to minus 2x into e raised to 2x into 2 plus e raised to minus 2x into minus 2 divided by e raised to 2x plus e raised to minus 2x the whole square. आया नहीं. स्टेप्स तो वही है. ब्रैकेट e raised to 2x plus e raised to minus 2x into हाँ क्योंकि e raised to 2x का डेरिवेशन उसके बाजू में ही करने का फिर e raised to 2x करने का डेरिवेशन ऑफ 2x उसके बाजू में ही करते रहने का तब वो 2 रहेगा. 140 ब्रैकेट e raised to root x minus 1 into e raised to root x into 1 upon 2 root x minus bracket e raised to root x plus 1 into e raised to root x into 1 upon 2 root x upon e raised to root x minus 1 the whole square. हाँ और ऑब्वियसली e raised to root x हुआ तो e raised to root x हो गया फिर into derivation of root x होगा 1 upon 2 root x. Done.
141 141 इधर दिया है क्या? नहीं दिया ना, तो कुछ तो मिसिंग हुआ है, नीचे है क्या? हाँ इधर से दिया होगा 141 राइट। चलो ब्रैकेट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 द होल क्यूब इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 द होल रेज टू 4 इंटू 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 द होल स्क्वायर। यस, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 142 तो इधर ही हुआ है, 43 इधर ही हुआ है, 44 से होगा फिर से होमवर्क राइट। तो ये 144 होगा, ये वाला सम, ये वाला 144 होगा। कौन सा 143 से? ये सब लॉग के प्रॉपर्टीज है। करते हैं चलो। अभी बेसिकली क्या होता है, लॉगरिथम जब आता है कोई फंक्शन के साथ, अभी log x हुआ तो हम लोग लिखते हैं 1/x क्योंकि log x का डेरिवेशन है। बट अगर लॉगरिथम के अंदर कुछ और फंक्शंस आ जाए लाइक log ऑफ sin x विच इज 1/sin x, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा डेरिवेशन करना पड़ता है जो अंदर है, जिसका आंसर cos x होगा और अपॉन sin x रहेगा। बट क्या होगा अगर लॉगरिथम के अंदर x क्यूब आ जाए, लॉगरिथम के अंदर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाए। देखो ऐसा टाइप के सम आते हैं ना, तो हम लॉगरिथम का एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं विच इज log a रेज़ टू m, विच इज m log a। तो log ऑफ x क्यूब आया तो मैं क्या कर सकता हूँ पता है, 3 सामने लेके log x लिख सकता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन इजी होता है एज कंपेयर टू दिस। सेम log ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं लिखूंगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल रेज़ टू हाफ, हाफ सामने लूंगा तो log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। मतलब ये चीजें मैं क्यों कर रहा हूँ, ये चीजें इसलिए कर रहे हैं ताकि डिफरेंशिएशन इजी हो जाए। वही अगर लॉगरिथम के अंदर एक्स क्यूब इंटू ई रेज़ टू एक्स आ जाए, तो बेसिकली अपने को क्या करना पड़ेगा, पहला लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जो 1/x क्यूब इंटू ई रेज़ टू एक्स होगा, फिर डेरिवेशन के अंदर ना एक्स क्यूब इंटू ई रेज़ टू आएगा जो ई रेज़ यू इंटू वी से परफॉर्म होगा। मतलब ये लेंदी जाएगा, बड़ा जाएगा या कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, इसको लॉग का प्रॉपर्टी है ना, इंटू रहेगा तो प्लस होता है, तो मैं इसको पहले सेपरेट करूंगा लॉगरिथम से। मतलब ये मेरा एडजस्टमेंट है y का, तो ये बनेगा 3 log x और ये बनेगा x log e, बट log e 1 हो जाता है, मतलब y क्या है होगा 3 log x प्लस x। देखो इसका डिफरेंशिएशन इजी है एज कंपेयर टू दिस, तो व्हाट इज dy बाय dx, d अपॉन dx ऑफ 3 log x प्लस x, 3 log x का 3 अपॉन x हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, तो आंसर इज 3 अपॉन x प्लस 1। मतलब इसका डेरिवेशन सिंपल हो जाता है एज कंपेयर टू ओरिजिनल फंक्शन लॉगरिथम आने से। तो लॉगरिथम कब कब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब लॉगरिथम का क्वेश्चन उसके थ्रू कब कब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 144 है, अब इधर क्या है, log ऑफ tan क्यूब है, sin रेज़ टू 4 है, x स्क्वायर प्लस 7 है, ये मेरा y का वैल्यू है, तो मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, log ऑफ tan क्यूब प्लस log ऑफ sin रेज़ टू 4 प्लस log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 द होल रेज़ टू 7, सबसे पहला। फिर मैं क्या करूंगा, tan क्यूब है ना, 3 सामने लूंगा तो ये बनेगा 3 log, मतलब मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट ही कर रहा हूँ अभी भी। 4 टाइम्स log ऑफ प्लस 7 टाइम्स log ऑफ, अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा इसको, जो होगा 3 अपॉन tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 4 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2x ऐसे। मतलब log क्या कर रहा है पता है क्या, सम को सिंपल बना रहा है, समझ में आया। तो अभी ये सम्स में भी ना तुम डायरेक्ट कर सकते हो अगर तुमको ऐसा कंफर्टेबल नहीं लग रहा ना। अभी ये क्वेश्चन है log ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x है। अब आई डोंट नो कौन सा नंबर है ये क्वेश्चन है तुम्हारा y। अभी तुम बेसिक लॉगरिथम का प्रॉपर्टी यूज करो, अगर ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं करना है तो बेसिक लॉगरिथम का प्रॉपर्टी मतलब y इज इक्वल्स टू log ऑफ, रेज़ टू हाफ,
तो हाफ किधर आएगा, सामने, तो लॉग ऑफ क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 3x। अब लॉगरिथम का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, डिवाइड है तो माइनस लॉग 1 प्लस कॉस 3x माइनस लॉग 1 प्लस कॉस 3x। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, डिफरेंशिएट कर सकता हूँ विद रेस्पेक्ट टू x, हाफ बाहर रहेगा, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस 3x, फिर डेरिवेशन के अंदर कौन आएगा, 1 माइनस कॉस 3x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 3x, फिर डेरिवेशन के अंदर कौन आएगा। तुम ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुमको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं आया तो। अगर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद है, रूट 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x, तो तुम लॉग रूट 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर 3x बाई 2, 2 कैंसल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, लॉग ऑफ tan 3x बाई 2। अब तुम लोग ही देखो, इसको डिफरेंशिएट करना इजी है या इसका डिफरेंशिएशन इजी था, इसको डिफरेंशिएट करना इजी है, 1 अपॉन tan 3x बाई 2 इंटू डेरिवेशन ऑफ tan 3x बाई 2, ये इजी है, तो हम इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज किए। हम पेरेंट्स को कभी बुला नहीं बोला मैं, तो अभी सैटरडे को मैंने बाहर, सैटरडे को निकाला बाहर, फ्राइडे को, तो उसके बाद कितना दिन था, बैठो, ये कौन सा समय, 3 है क्या। अब समझा, ये सम कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस स्क्वायर, याद रखो 1 प्लस कॉस, कॉस 1 माइनस साइन, जब 1 प्लस कॉस आता है कॉस में आंसर आएगा, 1 माइनस साइन आया तो साइन में आएगा, 1 प्लस कॉस मतलब 2 कॉस स्क्वायर 5x बाई 4 आधा डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर 5x बाई 4, 2 कैंसल, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर का रूट कॉट, तो बनेगा लॉग ऑफ कॉट ऑफ 5x बाई 4, फिर लॉग का डिफरेंशिएशन, कॉट का डिफरेंशिएशन, 5x बाई 4 का डेरिवेशन। मतलब थोड़ा सा ना देखो, ये बोर्ड के लिए ऐसा तुमको करना है, ऐसा कंपल्सन है, बट आगे जाके जेई सॉल्व कर समय तुमको क्लिक होना चाहिए सब सम्स, तो कोशिश करो ऐसे ही करने का जिससे जल्दी सम हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड में मत जाओ। अभी ये समय में क्यों नहीं बताया फॉर्मूला, क्योंकि इसमें नीड नहीं है, इसमें क्या कर सकते हैं, अभी 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूलाज है अपने पास, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए हम लोग उनको ऐसे ही रख के जो रूट है उसको हाफ लिए, तो हाफ को सामने लिए, लॉग ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, सॉरी 1 माइनस साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स लेके डायरेक्ट किए सॉल्व, डायरेक्ट पहले लॉगरिथम का, फिर 1 माइनस साइन एक्स का, लॉगरिथम का 1 प्लस साइन एक्स का, मतलब इधर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और अभी ये सम्स में, ये 3 सम में क्या हुआ, लॉग के प्रॉपर्टीज, अभी देखो ये इंटू है, ये डिवाइड है, ये पावर है, तो पहला स्टेप लॉग 4/2x इंटू है प्लस, अभी देखो ये 3/2 कहाँ पे आएगा, सामने आएगा, लॉग x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन रूट 2x क्यूब माइनस 4, तो ये 2x सामने आएगा, लॉग 4 प्लस 3/2 ब्रैकेट लॉग x स्क्वायर प्लस 5 माइनस लॉग 2x क्यूब माइनस 4 द रेस्ट टू हाफ, कहाँ से आया हाफ, रूट का, तो फिर से 2x log 4 प्लस 3/2 log x स्क्वायर प्लस 5, सामने कौन आएगा, हाफ log 2x क्यूब माइनस 4। अब डिफरेंशिएट करो, समझा, क्लियर, 16 17 18, एक बार फिर से कोशिश करेंगे, एक बार कम मतलब करो फिर से, किधर तक हुआ था लास्ट टाइम, 140, तो 148 है, एक एक सम हम लोग डिस्कस करेंगे 149 का, फिर खत्म ये, ठीक है। और ये 138 में क्या हुआ, 138 तो इजी है ना, देख 138 में ना पहला कॉट का कर, कॉट का डेरिवेशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर ब्रैकेट
log x by 2 इंटू डेरिवेशन के अंदर log x by 2 और log का कॉन cot x by 2 डेरिवेशन के अंदर cot x by 2 जब एक्स्ट्रा करेगा ना ये तो सेम रहेगा log x का क्या होगा 1 अपॉन x और 1 by 2 तो साइड में रहेगा ऐसा 1 अपॉन 2 इंटू 1 by x और cot x by 2 में 1 by 2 साइड में रहेगा cot का माइनस cos x पर x वो दिखने में थोड़ा अलग दिख रहा है बट करेगा तो हो जाएगा डन। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149 ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है मतलब लॉगरिथम का ही प्रॉपर्टी है y is equals to 25 raised to log to the base 5 of sin है sec x minus 16 raised to log to the base 4 of tan x। सबसे पहले देखो एक प्रॉपर्टी सिखाया था a raised to log to the base a of x क्या होता है x अगर ये दोनों मैच हुआ तो x होगा तो इधर 25 है इधर 5 है तो 5 का स्क्वायर log to the base 5 of sec x ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है एक जगह पे कहीं पे तो 16 को क्या लिखेंगे 4 स्क्वायर log to the base 4 of tan x। अभी ये 2 ऊपर जाएगा क्योंकि मुझे log 5 और log to the base 5 के बीच में कोई नहीं चाहिए तो ये sec स्क्वायर बन जाएगा सेम tan स्क्वायर बन जाएगा ये पूरा क्या हो जाएगा 1 तो sec स्क्वायर x बने ये पूरा क्या होगा 1 तो tan स्क्वायर x होगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर आइडेंटिटी तो व्हाट इज dy by dx समझा ये लिख के लो ना है मैं
हो गया। अभी ना एक छोटा सा कंसेप्ट है वैसे डिग्री और रेडियन का। बेसिकली हम लोग 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस जो करते हैं, ये कन्वर्जन क्यों करते हैं? ये जो 30 डिग्री होता है ना, ये कोई नंबर नहीं है, ये सिर्फ एंगल का मेजरमेंट बताता है, बट ये वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ, जैसे अभी 30 रुपीज ये तुम डिफाइन कर सकते हो। अगर तुमको बोला है $30, इस चीज को हम डिफाइन कैसे करते हैं इंडियंस? इसको कन्वर्ट इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके बताते हैं, क्योंकि $30 क्या है अपने को नहीं पता, $30 इंडियन रुपीस में क्या है पता करने के बाद हम उसके जज कर सकते हैं। लाइक कोई अगर तुम फॉरेन गए और तुमको वहां पे बोला है कि $5 का है, तुम क्या करोगे? परचेस करना है कि नहीं करना है, कैसे समझोगे पता है क्या? इसको पहले इंटू 80, अगर सपोज 80 रुपीज चल रहा है तो तुम लोग इसको करेंसी में कन्वर्ट करते हो इंडियन रुपी में। अच्छा 400 का है, हाँ वर्थ है नहीं है, क्यों पता है तुमको? ये मीडियम पता है, ये वे पता है जिससे जज कर सकते हो। तो सिमिलरली 30 डिग्री को हम जज नहीं कर सकते। 30 डिग्री को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? रेडियन में। 30 इंटू पाई बाय 180 कन्वर्ट करके पाई बाय 6 लिख के, तब हम लोग को पता चलता है पाई का वैल्यू तो 3.14 है, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग रहेगा। इतना वैल्यू है 30 डिग्री का, यू नो वैल्यू समझ रहा है? मतलब अगर 57.18 डिग्री लोग है ना तो 1 रेडियन होता है, तो 1 रेडियन इज नथिंग बट 1, मतलब एक्चुअली 1 का वैल्यू कितना है? 57.18 डिग्रीज है। 1 अपना 1, तो हमको किस में चाहिए? हर बार नंबर में चाहिए, बिकॉज अपना सिस्टम नंबर का है। तो अगर समझो मैंने क्वेश्चन में ऐसा दिया साइन x डिग्री, तो x डिग्री मेरे को नहीं पता, मेरे को नंबर में चाहिए, तो मैं पहला काम क्या करूंगा? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूंगा, फिर डिफरेंशिएट करूंगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x पाई बाई 180। साइन का क्या होगा? cos x पाई बाई 180, फिर एक्स्ट्रा डेरिवेशन ऑफ x पाई बाई 180, तो cos x पाई बाई 180 डिवाइडेड इनटू पाई बाई 180 आंसर। मतलब जब डिग्री में होता है ना, उसको किस में कन्वर्ट करने का? रेडियंस में। समझ में आया? तो ऐसे किसी के साथ भी हो सकता है। cos 3x डिग्री क्या करने का? cos 3x इंटू पाई बाई 180 करने का, 1 जा 60 जा, तो cos x पाई बाई 60 होगा, फिर डिफरेंशिएट करने का सेम। तो ऐसे ही 150 y इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन x डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस साइन x डिग्री। एक क्वेश्चन बच गया था यहाँ पे कहीं पे, ये तो क्यों रुका है? क्योंकि उसमें डिग्री आ गया। तो अपना पहला काम क्या है? हाँ, तो 1 प्लस साइन x पाई बाय 180 डिवाइड बाय 1 माइनस साइन x पाई बाय 180, ये y है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कौन सा रूल? क्वेश्चन रूल। तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy dx ऑफ 1 प्लस साइन x पाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन x पाई बाय 180, क्या होगा? 1 माइनस साइन x पाई बाय 180 इंटू डेरिवेशन ऑफ 1 प्लस साइन x पाई बाय 180 माइनस ब्रैकेट 1 प्लस साइन x पाई बाय 180 इंटू डेरिवेशन ऑफ 1 माइनस साइन x पाई बाय 180 अपॉन 1 माइनस साइन x पाई बाय 180। तो क्या आएगा? 1 माइनस साइन x पाई बाय 180 cos x पाई बाय 180 इंटू डेरिवेशन ऑफ x पाई बाय 180।
minus 1 plus sin x pi by 180 into minus cos x pi by 180 into derivation of x pi by 180 divided by 1 minus sin x pi by 180 the whole square. फिर क्या होगा 1 minus sin x pi by 180 into cos x pi by 180 into pi by 180 minus 1 plus sin x pi by 180 into माइनस कॉस, ये माइनस बीच में साइन प्लस कर सकते हो तुम लोग, cos x pi by 180 into pi by 180 divided by 1 minus sin x pi by 180 the whole square. आंसर डन. समझा? तो एक फर्स्ट यहाँ तक कंप्लीट करना है. तो लॉगरिथम का फिर से आगे ट्राई करो, नहीं जमते तो बताऊंगा फिर. डन. अभी हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी 12th का जो किए थे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, हुआ ना तुम्हारा 12th? बोर्ड का नहीं हुआ? प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, हाँ तो वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, नया इधर कुछ भी नहीं है. तो मतलब इधर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x आएगा. बट एक प्रॉब्लम क्या, हम लोग लिमिट्स में इनवर्स नहीं पढ़े, तो इसका मतलब इसको लिमिट के फॉर्मूला से नहीं करेंगे. किसके फॉर्मूला से करेंगे? नॉर्मल डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला से ही करेंगे. तो डिफरेंशिएशन फॉर्मूला से करने के लिए मतलब इसमें हमको फाइंड क्या करना है, dy by dx फाइंड करना है. तो सबसे पहले इसको एडजस्ट करते हैं. साइन इनवर्स इधर आए तो ये बनेगा साइन y इज इक्वल टू x. अब डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x. तो व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ साइन y? देखो डेरिवेशन ऑफ साइन y इज इक्वल टू डेरिवेशन ऑफ x होगा. साइन y का डेरिवेशन cos y, y का डेरिवेशन, क्योंकि हम लोग विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, साइन का cos हो गया, y का dy by dx, और x का डेरिवेशन 1. इसका मतलब क्या हुआ, dy by dx आ गया कितना, 1 अपॉन cos y. बट क्वेश्चन x में है ना, तो आंसर भी x में होना चाहिए. तो cos y किसके टर्म्स में आया तो x आएगा, साइन. तो लिखो cos y को क्या लिखोगे, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y. आइडेंटिटी cos स्क्वायर y क्या होता है, cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 1. तो cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y. तो cos y इज इक्वल टू, तो ये रूट ऑफ क्या बन जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये dy बाय dx से. तो साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेशन क्या होगा, रूट ऑफ, ये प्रूफ है, मतलब तुमको सिर्फ यही करना है. व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. दैट्स इट. क्लियर? यस नो? अभी तुमको पता है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x कितना होता है, पाई बाय 2 होता है, ये पता है. तो अगर मेरे को कॉस इनवर्स ऑफ x दिखा तो मैं उसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, है ना. तो अगर मैं डेरिवेशन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x मांग रहा हूँ तुमको, तो कॉस इनवर्स तो मुझे नहीं पता, तो मैं उसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, पाई बाय 2 का डेरिवेशन साइन इनवर्स ऑफ x का 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है. तो इसका मतलब माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉस इनवर्स. तो कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एकदम सिंपल लॉजिक याद रखने का. सी क्वेश्चन में सी आया तो आंसर माइनस में रहेगा. अभी tan y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x. बोलो फर्स्ट स्टेप, tan इनवर्स है, साइन कॉस कैसे बनाओगे, tan y इज इक्वल टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेशन ऑफ
tan y इज इक्वल टू डेरिवेशन ऑफ x. tan y का डेरिवेशन sec square y into dy by dx इज इक्वल टू 1. समझा? तो व्हाट इज dy by dx? बट sec square y को किसके टर्म्स में लिखना पड़ेगा? मतलब पहला डायरेक्ट नहीं आएगा ना, तो tan के फॉर्म में लिखने का 1/1 प्लस tan स्क्वायर y. पर tan कौन है? x. So what is dy by dx? 1/1 plus x square. So what is the derivation of tan inverse of x? 1/1 plus x square. Tan inverse का पार्टनर cot. So what is the derivation of cot inverse of x? minus 1/1 plus x square. प्रूफ समझेगा ना किसके थ्रू करने का? tan inverse of x plus cot inverse of x is equals to pi by 2. इससे आ गई है. डन. और एक बात याद रखने के लिए क्या? सी y is equals to sec inverse of x. नेक्स्ट बोलो. sec y is equals to x. नेक्स्ट. derivation of sec y is equals to derivation of x. sec y into tan y into dy by dx is equals to 1. So what is dy by dx? sec y into tan y. But sec y क्या है? x है. बट tan y भी किसके टर्म्स में होना चाहिए? तो tan स्क्वायर y is equals to sec square y minus 1. तो what is tan y? पुट लिख कर दो sec square y minus 1. बट sec का वैल्यू x है. तो what is dy by dx? 1/x root of. So what is the derivation of sec inverse of x? x root of x square minus 1. Done. बोलो डेरिवेशन ऑफ cosec इनवर्स क्या हो जाएगा फिर? x स्क्वायर माइनस 1. क्यों माइनस? और लॉजिक किससे होगा? sec इनवर्स ऑफ x प्लस इज इक्वल्स टू पाई बाय 2. देखो तुमको सब याद रखने का जरूरत नहीं, 3 याद रखने का. sin इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x, 1/1 प्लस x स्क्वायर. देखो sin इनवर्स ऑफ x का याद है, cos इनवर्स का याद रखने का जरूरत नहीं. मतलब cos इनवर्स दिखा तो सिर्फ माइनस साइन डालना है. tan इनवर्स का याद है तो cot इनवर्स दिखा तो माइनस साइन के डालना है. sec इनवर्स का याद है तो cosec इनवर्स का सिर्फ माइनस डालना है. तो 3 याद रखने हैं, 3 अपने आप आएंगे. और एक बात, हम ना ट्रिग्नोमेट्री मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे 151 y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x, सेम इधर भी कंपोजिशन आएगा. साइन इनवर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस आएंगे, बट अपने लिए साइन इनवर्स का डेरिवेशन तो पता है, 2x का डेरिवेशन भी पता है. तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equals to dy dx of what? sin inverse of 2x 1/√1 minus x square होता था, बट अभी क्या लिखेंगे? 2x square. फिर डेरिवेशन के अंदर कौन रहेगा? 2x. 2x का डेरिवेशन क्या होता है? 2. तो इट इज 2/√1 minus 4x square. समझ रहे? क्वेश्चन नंबर 152 y is equals to tan inverse of log x. बोलो, एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. तो dy by dx is equals to dy dx of tan inverse of log x. बोलो 1 plus log x the whole square into derivation of log x 1/1 plus log x the whole square into 1/x.
y is equals to sec inverse of sin x. डिफरेंशिएट करें डायरेक्ट, dy by dx is equals to dy dx of sec inverse of sin x. sec inverse का डेरिवेशन क्या होता है? 1 upon x. x मतलब sin x root sin square x minus 1 into derivation of sin x. What is the derivation of sin x? It is cos x upon sin x into root of sin square x minus 1. Y is equals to cosec inverse of e raised to x. करो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट, dy by dx of cosec inverse of e raised to x. बोलो minus 1 upon e raised to x root of e raised to x का whole square minus 1 into derivation of e raised to x. Answer root of e raised to x का whole square minus 1. e raised to x कैंसिल कर सकते हो. y is equals to sin inverse of root of 1 minus x square. Differentiate with respect to x. dy by dx is equals to dy by dx of sin inverse of root of 1 minus x square. 1 upon under root of 1 minus root 1 minus x square the whole square into derivation of root of 1 minus x square into 1 upon root of 1 minus x square the whole square into 1 upon 2 root of 1 minus x square into derivation of 1 minus x square. 1 minus x square का डेरिवेशन minus 2x है. 1 minus 2x 1 का 0 minus 2x है तो क्या आएगा minus 2x upon root of 1 minus x square the whole square into 1 upon 2 root of 1 minus x square. टू कट कर सकते हो, समझ रहा है? अभी y is equals to sin inverse of sin x है. बोलो अभी तुम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तुमको जो आता है वो बताओ फटाफट. dy by dx is equals to dy by dx is equals to dy by dx of sin inverse of sin x. तो पहला डेरिवेशन sin inverse का होगा 1 upon under root of 1 minus sin square x into derivation of sin x. What is the derivation of sin x? So it is cos x upon root of 1 minus x square, right ना? बट हम इसको ना ऐसा भी कर सकते. देखो बाहर कौन है, अंदर कौन है, ये साइन इनवर्स साइन रिमूव हो जाएंगे तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा, तो dy by dx इज इक्वल टू क्या बनेगा. फिर तुमको लगेगा इसका आंसर अलग है, इसका आंसर अलग है. आंसर अलग नहीं है, सेम है, बिकॉज ये cos x है. 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है, cos स्क्वायर x का रूट क्या होता है, cos x कैंसिल हो क्या बचेगा, मतलब अभी भी dy by dx 1 ही आ रहा है. बट ये मेथड इजी है एज कम्पेयर टू दिस. बट ये मेथड हर जगह पे यूज नहीं होगा. हाँ, जहाँ पे सेम होगा 157 जैसे y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन e रेज टू x, तो y इज इक्वल्स टू e रेज टू x. तो dy by dx इज इक्वल्स टू डेरिवेशन ऑफ e रेज टू x व्हिच इज e रेज टू x. 158 y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ log x. y is equals to log x. So dy by dx is equals to dy by dx of log x, which is 1 by x. y is equals to cosec inverse of cosec of sin x. y is equals to sin x. So dy by dx is equals to dy by dx of sin x. What is the derivation of sin x? Cos x. Second open. y is equals to tan, समझा ना, बाहर और अंदर सेम रहेगा तो हो जाएगा. अगर बाहर साइन इनवर्स है अंदर cos x है तो भी हो जाएगा. क्यों, साइन इनवर्स है अंदर साइन आएगा तो हो जाएगा ना.
हम कॉस को साइन में लिख सकते हैं, है ना। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो क्या होगा, 0 माइनस 1, आंसर इज -1। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स में तुम साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स लिखा तो भी कुछ नहीं होगा ना, कि साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस एक्स ही होता है ना। तो हम ये क्यों नहीं लिख रहे, ये क्यों लिख रहे हैं, क्यों नेगेटिव होगा, 90 प्लस में सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अरे साइन क्वेश्चन में देखिएगा ना, साइन पॉजिटिव होता है, इसके लिए कॉस को प्लस देते हैं। तो ये क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों कर रहे हैं, सोचो। आया मैं दो
क्यों पाई बाय 2 प्लस एक्स साइन ले सकते हैं? सर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव रहेगा ना। फिर कॉस क्यों चाहिए तेरे को? कॉस क्यों देख रहे हो? तो क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। तो जब साइन 90 प्लस थीटा करता है तो किसका क्वाड्रेंट देखता है? साइन का देखता है कि कॉस का देखता है? साइन का ही देखेगा ना। तो क्वेश्चन तो साइन है ना। मैं पूछ रहा हूँ साइन पाई बाय 2 प्लस क्यों नहीं कर सकते? बोलो। What is the principal solution of sin inverse of x? प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से क्या रहेगा साइन इनवर्स ऑफ x का? बोलो। माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ x का आंसर्स इसके बीच में ही आ सकते हैं ना। इसका बियॉन्ड जा सकते हैं ना इसका पीछे नहीं जा, मतलब दोनों लिमिट्स के बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं साइन इनवर्स के अंदर साइन लिख के पाई बाय 2 प्लस लिख रहा हूँ, इसका मतलब मेरा आंसर पाई बाय 2 से ज्यादा आ रहा है, जो पॉसिबल नहीं है साइन इनवर्स के हिसाब से। तो मुझे किधर आना पड़ेगा? पीछे ही आना पड़ेगा। इसके लिए मैं प्लस नहीं ले सकता, मैं क्या लूंगा? माइनस। वन 161 y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ साइन x। तो इसमें तो मुझे कॉस का माइनस ही लेना पड़ेगा बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंट्री कराना पड़ेगा। तो कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो विच इज पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो dy by dx इज इक्वल टू dy by dx ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। पाई बाय 2 का 0 माइनस 1, आंसर इज माइनस 1। तो dy by dx इज इक्वल टू माइनस 1। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cot x हो जाएगा। y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ tan x होएगा। सब में क्या लिखने का? पाई बाय 2 माइनस एक्स ही चलेंगे सब। 164 y इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स ऑफ cosec x। y इज इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ sec x। सब में क्या चलेगा? पाई बाय 2 माइनस ही चलेगा। ये बेसिक एग्जांपल्स हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। 166 हो जाएगा। tan इनवर्स ही लिया ना मैं, ये हो गया। 166 cosec इनवर्स ऑफ e raised to minus x, पहला डेरिवेशन। cosec का फिर माइनस एक्स का 3 है वो। 167 पहला डेरिवेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 168 पहला डेरिवेशन। फिर 169 पहला डेरिवेशन। फिर 170 पहला डेरिवेशन। फिर
फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का 171 पहला डेरिवेशन, फिर क्वेश्चन नंबर 172 पहला डेरिवेशन, फिर x रेज टू 3/2 173 पहला डेरिवेशन। देखो सबसे पहला ना इधर ना cos क्यूब है ना, ये क्यूब को हटा के ना तुम लोग ऐसा लिख सकते हो आराम से। तब देखो अंदर कौन है, cos cos मैच हो रहा है, cos cos रिमूव हो जाएगा तो बचेगा अंदर कौन, x क्यूब का क्यूब, x रेज टू 9 का डेरिवेशन। क्वेश्चन नंबर 174, ये 4 को निकाल के होल रेज टू रहने का तो बनेगा रूट एक्स रेज टू 4, रूट एक्स रेज टू 4 मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन 2x सिर्फ e रेज टू एक्स स्क्वायर बचेगा, दोनों हट जाएंगे ना तो e रेज टू एक्स स्क्वायर क्या होगा, so x square into derivation of x square is 2x. So question number 166 to 175.